A very good morning, students. Students, today we are going to discuss a new topic that is from Unit 2, that is design of an isolated footing subjected to uniaxial bending. Uniaxial bending means a bending from one direction, okay, from one axis, either X or Y, whichever it would be, okay. So we are basically going to design an isolated footing. A footing that is a single one is called as an isolated footing, or you can say an individual footing is an isolated footing. So isolated footing subjected to a load because of which the movement is taking place, okay, which is creating a bending from one direction only. That is what we are going to decide. Okay. Uh, Isolated footing subjected to bending in uniaxial direction. Yeah, subjected to uniaxial bending. Simple. Subjected to a uniaxial bending. Which step? I think मैं आपको समझाते चलता हूँ कि क्या हम पढ़ रहे हैं. ओके. So let's start with the numerical directly. जहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा. उन डिटेल्स को लेकर हम डिजाइन करेंगे अपने फुटिंग को. ठीक है. चेक करते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है. So I'm taking a numerical where uh, the given data or a given data are as shown here. Okay, I'm copying that given data. There is a square RCC column which carries a factored load of 1200 kilonewton. We are given with a square column subjected to a load that is 1200 kilonewton. Okay, that is a factored load. Factored means ultimate load. Okay. Next thing that is given to you, and a factored movement of 150 kilonewton meter, and a factored load of 150 kilonewton meter that is given to you. Okay. The overall size of the column is 450 by 450 mm. The overall size of the column size is given to us, that is 450 mm by 450 mm. ठीक है, आगे चलते हैं. What is the other thing given to us? Assume the bearing capacity of soil. Assume the bearing capacity of the soil as 150 kilonewton per meter square. That is given to us. Next thing, and a unit weight of soil is 20 kilonewton per meter cube. And the unit weight इस तरीके से that is given to you 20 kilonewton per meter cube. आगे चलते हैं. Used M20 concrete and Fe415 steel. Used M20 concrete and Fe415 steel. This is given to us. आगे क्या बोलते हैं, क्या डिजाइन करना है? डिजाइन करना है कॉलम. कौन सा कॉलम? फुटिंग. कौन सी फुटिंग देखते हैं? डिजाइन द स्क्वायर फुटिंग फॉर द कॉलम एंड ड्रॉ अ नीट स्केच रेनफोर्समेंट. क्या बोल रहा है? डिजाइन अ स्क्वायर फुटिंग एंड ड्रॉ a reinforcement detailing. Draw a reinforcement detailing. This is what about our current numerical is. Okay, so let's start with it. So we are provided with a square column. जिससे हमको फुटिंग क्रिएट करना है, हम कंसिडर करते हैं कि हम स्क्वायर फुटिंग क्रिएट करते हैं. ठीक है, एक स्क्वायर फुटिंग बनाते हैं. ठीक है, तो ठीक है, मुझे लोड कितना गिवन है? 1200. ये क्या रहेगा? फुटिंग जमीन के अंदर, ये दिखा रहा हूँ मैं. दिस इज ग्राउंड लेवल. अब हमारी फुटिंग जमीन के अंदर है. कितनी अंदर है उसको बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ फुटिंग. ये हमको निकालना पड़ता है, हम निकाल लेंगे उसको कि कितनी रहती है. ठीक है. ओके, वन मोर थिंग. आपका एंगल ऑफ रिपोज इज ऑल्सो विच इज एन इम्पोर्टेंट थिंग that must be taken into consideration in your design. Angle of repose is an angle which a soil makes with horizontal.
अगर मैं एक सॉइल लेता हूँ और सॉइल को ऐसे जमीन पर फेंकता हूँ ऊपर से, तो वो इस तरीके से स्प्रेड आउट होगी। तो विथ हॉरिजॉन्टल या alternate angle, with horizontal, how much angle it is making, that is called as an angle of repose, that is called as an angle of repose। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज किसमें ज्यादा और किसमें कम मिलेगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज किसमें ज्यादा और किसमें कम मिलेगा देखते हैं। ऐसी सोइल रहेंगी तो एंगल क्या होगा, एंगल कम हो गया ना, आपका एंगल कम हो गया। यानी कि सैंड रहेगा तो एंगल कम हो जाएगा, क्ले रहेगा तो एंगल ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा रहेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज आपको टाइप ऑफ सॉइल बताता है, सॉइल कितनी कोहेसिव है और कितनी नॉन कोहेसिव है। इफ द एंगल ऑफ रिपोज इज नॉट गिवन टू यू, यू आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू कंसिडर इट एज 30 डिग्री। 30 डिग्री हमको नहीं दिया था, हमने अज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारा एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री। ठीक है ना, क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज बीन टोल्ड टू यू। ओके, so let's start with our numerical very first step is the design constant। very first step is the design constant या डिजाइन कांस्टेंट किसको बोलते हैं हम, ये जो हमें कंक्रीट का ग्रेड मिला है, दैट इज कॉल्ड एज एफसीके। उसकी वैल्यू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड ऑफ स्टील Fe 415। ठीक है, दैट इज गिवन टू यू, दैट इज गिवन टू अस इन mu लिमिटिंग। आपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है व्हाट इज mu लिमिटिंग। mu लिमिटिंग इज द limiting moment or the maximum moment that depends upon the grade of concrete, which is M20 to us, so for which the value is 0.138 FCK BD, 0.138 FCK BD, I think square भी है, BD square। So this is our design concept। ठीक है, now let's straight away direct to the second step, that is the depth of footing। मैं इसको डिलीट कर दूं, इरेज कर देता हूँ पूरा। Let's come to the second step, that is the depth of footing, जिसको मैं यहाँ शो किया हूँ। This is called as the depth of footing। depth of footing का डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। व्हाट इज द फॉर्मूला, एसबीसी अपॉन गामा 1 माइनस साइन पाई अपॉन 1 प्लस साइन पाई। एसबीसी अपॉन गामा 1 माइनस साइन पाई अपॉन 1 प्लस साइन पाई द होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर डेप्थ ऑफ फुटिंग। एसबीसी आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है, डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करो। तो भी आपकी वैल्यू है 150 है, या आपका 20 है, या आपका 30 है, वैल्यू पुट अप करके आप आंसर निकालो कितना आता है। एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग मिनिमम कितना होता है, दैट इज 1 मीटर। आपकी वैल्यू 1 मीटर से ऊपर आना चाहिए। योर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 मीटर और एल्स योर टेकन वैल्यू विल बी 1 मीटर। ओके, so what is the value of it, मुझे दिख रहा है the value is 0.83 मीटर, 0.83 मीटर which is not greater than 1, which is df minimum। therefore depth of footing is equals to df minimum equals to 1 meter। so we are considering our depth of footing as 1 meter। this is your step number 2। straight away let's come to the third step, that is load calculation। आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप दैट इज अ लोड कैलकुलेशन। बहुत सिंपल डिजाइन है इसका, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वेरी फर्स्ट थिंग इज अल्टीमेट लोड फ्रॉम कॉलम कितना आ रहा है, दिया हुआ है आपको, देखिए ऊपर से 120 किलो न्यूटन।
लोड जो कॉलम से आ रहा है वो है 1200, ठीक है। किस पर? फुटिंग पर। कॉलम से लोड कितना आ रहा है? 1200। लेकिन इसके अलावा सेल्फ वेट भी तो है, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। अच्छा, कॉलम से जो लोड आ रहा है वो ना सिर्फ ऊपर का लोड है बल्कि कॉलम का भी लोड है। कॉलम का लोड मिलाकर, कॉलम का लोड और ऊपर से जो भी लोड आ रहा है दैट इज ऑल इक्वल टू 1200, फैक्टर्ड लोड के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब क्या बचा? फुटिंग पे और किसका लोड आ रहा है? उसका खुद का भी तो लोड आ रहा है। लोड कैलकुलेशन में हम फुटिंग को डिजाइन कर रहे हैं, तो फुटिंग के ऊपर क्या है? दैट इज अ कॉलम। कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा है और कॉलम का खुद का लोड है दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 1200 किलो न्यूटन। अब क्या बचा? फुटिंग का खुद का लोड, वो कितना रहता है? हम उसको कंसिडर करते हैं सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू 10% ऑफ लोड फ्रॉम कॉलम। तो वो कितना होता है? 10% ऑफ लोड फ्रॉम कॉलम, दैट इज 1200, ठीक है। तो टोटल लोड कितना बनता है? 1320। अब ये देखिए, ये लोड फैक्टर्ड फॉर्म में था, दिस वाज इन अ फैक्टर्ड फॉर्म, तो ये वैल्यू आपकी फैक्टर्ड फॉर्म में मिल गई है। अल्टीमेट लोड मिल गया है। अल्टीमेट लोड दैट इज कमिंग ऑन फुटिंग, अल्टीमेट लोड दैट इज कमिंग ऑन अ फुटिंग इज 1320 किलो न्यूटन। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है आप लोगों को कि ये आया कहाँ से है। आगे बढ़ सकते हैं। टोटल लोड दैट इज कमिंग ऑन अ कॉलम इज 1320। अब लोड आ गया है, एसबीसी है, आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ अ फुटिंग, ठीक है। आई एम रेजिंग दिस स्टेप नाउ। ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, आई थिंक बहुत सिंपल डिजाइन है इसका। लोड डिजाइन ऑफ फुटिंग इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। एरिया ऑफ फुटिंग, एरिया ऑफ फुटिंग, आप फुटिंग का एरिया निकाल रहे हो, एंड एरिया ऑफ फुटिंग कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लोड और सॉइल की एसबीसी। लोड कितना आ रहा है और सॉइल की एसबीसी कितनी है, ठीक है। लोड कितना फुटिंग पर आ रहा है और सॉइल कितना झेल सकता है, इसके ऊपर एरिया डिपेंड करता है। तो ये है टोटल वर्किंग लोड अपॉन SBC. This formula is given to you. Total working load upon SBC is the formula for area of footing. Total working load upon SBC is the formula for area of footing. टोटल वर्किंग लोड कितना है आपका? कितना आया फैक्टर्ड लोड? 1320। वर्किंग लोड बनाना है तो इसको डिवाइड बाय 1.5 कर देंगे, और एसबीसी कितना गिवन है हमको? 150। तो इससे वैल्यू आ जाएगा एरिया ऑफ फुटिंग का। एरिया ऑफ फुटिंग कम्स आउट टू बी 5.87 मीटर स्क्वायर। 5.87 मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू फॉर एरिया ऑफ फुटिंग, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर एरिया ऑफ फुटिंग। अब एरिया ऑफ फुटिंग तो मिल गया, लेकिन उसको हमको डायमेंशन के फॉर्म में डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो बी में कितना और डी में कितना। तो वी नीड टू लाइक वर्क आउट ओवर दिस। व्हाट शैल आई डू? मैं इसको रब कर देता हूँ डायरेक्टली, ओके। अब हमें एरिया तो मिल चुका है, बट एरिया का डिवीजन नहीं हुआ है लेंथ वाइज ब्रेथ वाइज। और सबसे पहली चीज, सिंस वी हैव टू डिजाइन अ स्क्वायर फुटिंग, देयरफॉर एरिया ऑफ फुटिंग का फॉर्मूला रहेगा बी इंटू बी, और कहने का मतलब बी स्क्वायर। तो 5.87 बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए? मेरे पास कितना लिखा हुआ है? 2.5 2.42 मीटर, 2.42 मीटर, जो हम राउंड ऑफ करके कितना कर दे रहे हैं?
2.5. So we are providing the size of our square footing as 2.5 by 2.5. ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया, एरिया डिसाइड कर लिया है, डेप्थ डिसाइड हुई है क्या, नहीं, वी हैव जस्ट इनिशियली स्टार्टेड विद द डायमेंशन दैट इज एरिया डी और डी, जो कि हमारा बी और बी है, जो हमने फाइनलाइज कर लिया. So this step is completed. Let's move on to the next step, that is upward pressure intensity. ठीक है, अब आपने क्या बना लिया, देखिए आपको पता चल गया लोड कितना आ रहा है, 1200 कॉलम के साथ लोड फुटिंग पर आ रहा है, फुटिंग का खुद का लोड मिलाकर 1320 का लोड जमीन पर जा रहा है. ठीक है ना. अब आपने क्या किया, टोटल वर्किंग लोड, एक्चुअल लोड कितना है उसके हिसाब से एरिया निकाल लिया. योर एक्चुअल लोड इज कमिंग आउट टू बी 1320 डिवाइड बाय 1.5 विल बी योर एक्चुअल लोड. 1320 डिवाइडेड बाय 1.5 इज योर एक्चुअल वर्किंग लोड. ठीक है, जो जमीन पर जा रहा है, तो एक्चुअल वर्किंग लोड अपॉन एसबीसी अपॉन सॉइल की कितनी ताकत है, उससे आपको पता चल गया मेरा एरिया कितना रखना है. एरिया को मैंने फॉर्मूले से स्प्लिट कर दिया बी इंटू बी करके, तो वी हैव फाउंड आउट दैट 2.5 बाई 2.5 का मुझे स्क्वायर फुटिंग बनाना है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है. नाउ व्हाट इज दिस अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी, नेक्स्ट स्टेप इज अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी. मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ रहे हैं टू अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी. नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, upward pressure intensity, that is denoted by small p u. Now what is this upward pressure intensity, क्या चीज है. It is the ability of the soil, it is the ability, अगर मेरे ऊपर में फुटिंग बनी हुई है और मैं सॉइल हूँ, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू विथस्टैंड द लोड अप्लाइड ऑन इट, टू विथस्टैंड द लोड अप्लाइड ऑन इट. जितना लोड नीचे आ रहा है उसको रोक पा रहा है क्या, दैट इज कॉल्ड एज अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी. ठीक है ना. आर यू क्लियर विद दिस, व्हाट इज अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी. अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी, अगर ये मेरी फुटिंग है तो ये फुटिंग से जितना लोड है, ये पूरा लोड जो जमीन पर आ रहा है, ये पूरा लोड जो जमीन पर आ रहा है, तो कितनी जमीन पर अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी आएगा, जितना एरिया ऑफ फुटिंग है उतने उतने से अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी ऊपर जाएगा. ठीक है ना. अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी यहाँ से ऊपर जाएगा. करेक्ट है, सिर्फ एरिया ऑफ फुटिंग से, बी और डी से, एल और बी से, जो भी बोला आप. ठीक है, तो अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी क्या चीज है, एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू विथस्टैंड द अप्लाइड लोड, ability of the soil to withstand the applied load with the help of area of footing, with the help of area of footing. So the formula is ultimate load from column upon axial area of footing. Ultimate load from column upon axial area of footing. कॉलम से अल्टीमेट लोड कितना जा रहा है और सॉइल कितना झेल सकती है, फ्रॉम दिस एरिया, दैट इज द फॉर्मूला. अल्टीमेट लोड फ्रॉम कॉलम अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ फुटिंग. अल्टीमेट लोड कितना है कॉलम से, 1200. एक्चुअल एरिया कितना है, 2.5 बाई 2.5 वैल्यू.
the value comes out to be 192 kilonewton per meter square. 192 kilonewton per meter square is the upward pressure intensity, that is the ability of the soil. Okay. Now let's come to the next step, step number 6. अब हमको पता चल गया अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी कितना आ रहा है, लोड कितना है, ठीक है, मोमेंट निकालना बचा है, और सबसे पहली चीज पोजीशनिंग करना बचा है। क्या हमारा लोड जो आ रहा है एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रहा है या कुछ इसेंट्रिसिटी पर है? अगर कुछ इसेंट्रिसिटी पर है तो हमको उसको सेंटर से पास करवाना पड़ेगा। दैट इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप। द नेम ऑफ द स्टेप इज इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड एंड द फुटिंग पोजीशनिंग। इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड एंड फुटिंग पोजीशनिंग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद इट। आपको समझाता हूं मैं वो क्या चीज है। जो हमारा पीयू है, इज दैट पीयू falling from the center or it is having some eccentricity? So that is what we are going to check out right now in this step. Eccentricity of load and footing positioning. Eccentricity of load and footing positioning. Let's start with the eccentricity of load. मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? अरे सॉरी, इससे पहले मुझे मोमेंट निकाल लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे अगर इसेंट्रिसिटी निकालना है। देखो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। मान लो अगर सेंटर से पास नहीं हो रहा है मेरा लोड, अगर सेंटर से पास हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो मोमेंट कैसा क्रिएट होगा? विद दिस फोर्स एंड दिस इसेंट्रिसिटी देयर विल बी अ मोमेंट इन यू, करेक्ट है। तो मोमेंट का फॉर्मूला है मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू इसेंट्रिसिटी। क्योंकि मोमेंट कैसे क्रिएट होगा? विद द हेल्प ऑफ फोर्स एंड सम इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द सेंटर, द मूवमेंट विल गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है। इस वजह से ये फुटिंग को ऐसा करके बेंड करवाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो पहले मुझे मोमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया, अभी मेरे पास पीयू तो है, ई नहीं है, एमयू नहीं है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, इससे पहले दिस विल बी द स्टेप नंबर 7। मुझे इसके पहले एक स्टेप निकालना पड़ेगा, दैट इज द मूवमेंट। ओके, तो मूवमेंट मेरे पास अवेलेबल है क्या? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आई हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड विद एमयू, sorry, there is already an MU provided to you, so there is no other step in between. MU is given to us. I forgot that MU हमारे पास है. Anyway, so if MU is given to us, what is this? 1200. तो मुझे डायरेक्टली ई मिल जा रहा है इन mm कि इसेंट्रिसिटी है कितनी। मेरे पास वैल्यू आ रही है, दैट इज 125 mm। 125 mm से लोड सरका हुआ है। दिस लोड इज at 125 mm away from the center, because of which a moment of 150 kilonewton meter is taking place. Okay, now what we are going to do is इस लोड को सेंटर पर लेकर आएंगे। ये मूवमेंट क्योंकि हो रहा है और लोड साइड में सरका हुआ है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये लोड को हम सेंट्रल एक्सिस पर लेकर आएंगे, ठीक है। अब कैसे लाते हैं चेक करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, लोड इधर है पी यू,
सेंटर ये था, ठीक है। इससे 125 mm पर इसेंट्रिसिटी पर लोड आ गया, ठीक है। ये कितना था 450, इसका आधा कितना होता है 225 टाइम 225, यहाँ 125 कट गया, ये बचता है 100। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट को सेंटर पकड़ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज द सेंटर पॉइंट। हम क्या मान रहे हैं कि हमने लोड को सरका दिया और इसको हम सेंटर पॉइंट पकड़ रहे हैं। तो ये था 2500, 2500 का आधा। अब क्या कर रहे हैं हम, इधर सरका रहे, वी आर शिफ्टिंग आर फुटिंग, और इसका साइज इधर से सरका दे रहे हैं। कितने से 1250 से, ठीक है, 1250 से। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। तो अब इसमें कितना प्लस हो गया, 125। तो ये कितना हो गया 1375, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ से ये 125 माइनस हो गया, है ना। तो ये कितना बच गया, 125 माइनस हो गया, तो ये 1125। इस तरीके से हमने सेंटर कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया आपको कि हमने किया क्या है। हमने फुटिंग को इधर से इधर सरका दिया ताकि लोड हमारा सेंटर से पास हो। आई होप ये समझ में आया आप लोग को कि क्या चीज करा है हमने। आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हुआ है आप लोगों को कि क्या किया है हमने। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सीसी ऑफ फुटिंग जो कि ये था, अब मेरा सीसी ऑफ फुटिंग ये बन गया, सीसी ऑफ फुटिंग। फुटिंग को हमने सरका दिया, लोड को ला लिया सेंटर पे, ये हमारा सीसी ऑफ फुटिंग बन चुका है, ठीक है। इसका मैं आपको टॉप व्यू बना देता हूँ।